Okay, students, welcome back to Simplifying Physics. We were doing some questions for NET और इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस हम कर चुके थे बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो सो आई एम डूइंग इट इन दिस नेक्स्ट पार्ट. Okay, the first question in this part is if the Compton shift is half of the Compton wavelength, then scattering angle would be in degrees. So इसके लिए आपको Compton effect का पता होना चाहिए पहले और you must know the equation for the Compton effect. तो equation of Compton effect हमारे पास क्या होती है? We know it is equal to delta lambda over h into h over m e c into 1 minus cos of theta. Now you must know the terminologies कि हमारे पास ये टर्मिनोलॉजीज क्या हैं. अच्छा, ये जो फैक्टर है h ओवर एम ई सी ये हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ होती है एंड दिस डेल्टा लैम्डा इज कॉम्पटन शिफ्ट. अब वो कहता है कि ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है ये हाफ ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ है. सो इट मीन्स दैट वी कैन राइट कॉम्पटन शिफ्ट एज 1/2 लैम्डा and this h over MEC as lambda into 1 minus cos of theta. We have to find the scattering angle. It means that we have to find the value of theta. This lambda is being multiplied on the both sides, so we can cancel it out. It means that we are left with 1/2 is equal to 1 minus cos of theta. We have to find the value of cos of theta, so we can just rearrange this equation. We will be left with cos theta is equal to 1 minus 1/2, which will be equal to 1/2. So for theta we will be left with cos inverse of 1/2, which gives us the value of theta as 60 degrees. So this is how we can solve this particular question. ये हमारे पास इसका आंसर होगा. So now let us move forward towards the next question. There is a solenoid and it is given in the question that we have kept the number of turns constant for this particular solenoid and we have doubled the length. हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा ये बताना है. सो फॉर दैट वी मस्ट नो द फार्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनाइड और वो हमें गिवन है कि वो हमारे पास B इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन आई एंड स्मॉल एन इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. So we can rewrite this formula as B is equal to mu naught N divided by L into I, where I is the current passing through that solenoid and mu naught is the permeability of free space. So now हमने मटेरियल की लेंथ को डबल करना है तो उसकी न्यू वेव लेंथ न्यू मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सो हमने सोलेनाइड की लेंथ को डबल किया, N को कांस्टेंट रखा, वी विल हैव दिस थिंग. सो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1/2, taking 1/2 out of this equation, so we will have mu naught N divided by L into I, which was the original magnetic field. So it means कि आपके पास जो न्यू मैग्नेटिक फील्ड होगी it will be half of the original magnetic field. So we can solve such questions like this. Okay, so moving forward towards the next question, it is asked that we have an inductor और उसकी इंडक्टेंस गिवन है 1 हेनरी एंड इट इज़ कनेक्टेड across a voltage source of 220 volt with a 50 hertz frequency. It means it is connected to an AC with a frequency of 50 hertz and voltage of 220 hertz. We have to find the value of its peak current. Okay, by Ohm's law generally we know that V is equal to IR, but in case of कैपेसिटर और इंडक्टर वी नो कि हमारे पास जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट होती है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द इंडक्टर इन दिस केस हमारे पास हमें पता है कि XL के हमारे पास जो रिएक्टेंस है ऑफ इंडक्टर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से एंड विच इज़ जनरली इक्वल टू ओमेगा L और वी कैन राइट इट एज 2πfL. नाउ हमारे पास V इज इक्वल टू IR होता था जनरली, तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IXL. फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट वी विल बी लेफ्ट विद I इज इक्वल टू V ओवर XL. XL की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. XL की वैल्यू हमारे पास है 2πfL. XL विल बी इक्वल टू 2πfL.
the value of frequency is 50 hertz and the value of L is 1, so it will be equal to 100 pi. So we are given with the value of voltage which was 220 volt and the value of XL is 100 pi. So we will just calculate the value from this and we will come to the answer which will be equal to 0.7 amperes. So we can solve such questions like that. हमें पहले उसके लिए जो है कैपेसिटिव या इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करनी होगी and then we can use this general formula to find the value of current. Okay, the next question is about the heat and thermodynamics. इसके अंदर वो हमसे पूछ रहा है कि कार्नट साइकिल के लिए आपके पास 100% एफिशिएंसी किस कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल है. सो फॉर दैट यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल नो द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन. हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो होता है वो इक्वल होता है 1 - T2 डिवाइड बाय T1 और इसको अगर आपने परसेंटेज के अंदर लिखना है तो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 100. नाउ यू मस्ट नो दीज टर्म्स के हमारे पास T2 और T1 क्या है. T2 इज टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वायर, T2 इज टेम्परेचर एट कोल्ड रिजर्वायर एंड T1 इज टेम्परेचर एट हॉट रिजर्वायर. नाउ हमें अगर किसी भी कॉर्नेट साइकिल या कॉर्नेट इंजन की आपने एफिशिएंसी को अगर मैक्सिमम करना है या 100% करना है, फॉर दैट वी मस्ट हैव दिस सेकंड टर्म एज ज़ीरो. सो उसके लिए हमें T2 को 0 केल्विन के ऊपर रखना होगा. ये कीप इन माइंड कि ये जो टेम्परेचर्स हैं ये हमारे पास इन डिग्री केल्विन्स होते हैं, ये हमारे पास केल्विन्स के अंदर होते हैं, नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड्स. ओके, सो इट मीन्स कि अगर हमने एफिशिएंसी को 100% करना है तो कोल्ड रिजर्वायर को हमने 0 केल्विन के ऊपर रखना होगा. एंड प्रैक्टिकली डू कीप इन माइंड कि ये हमारे पास प्रैक्टिकली जो है वो हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर 0 केल्विन के ऊपर नहीं हो सकता. सो दैट्स वाई द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नट साइकिल और कार्नट इंजन कैन नेवर बी इक्वल टू 0 डिग्री, कैन नेवर बी इक्वल टू 100%. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. Moving forward towards the next question. Okay, there is spring which is halved. Now the spring is divided into 2 equal parts. अब हमने उस ईच इंडिविजुअल इक्वल जो पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है. इनिशियली लेट अस से इस स्प्रिंग का जो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट था वो था K इनिशियली. नाउ हमें पता है कि फ्रॉम हुक्स लॉ वी हैव F इज इक्वल टू Kx जनरली एंड फ्रॉम दिस we can write it as K is equal to F by X. So here X was the extension in the spring. So now we are dividing the spring into 2 equal parts. So it means कि हम उसकी जो extension है उसको half कर देंगे. So for it means कि हमारे पास जो K होगा वो हमारे पास equal हो जाएगा 2K के equal. कि हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास था, क्योंकि हम x को x/2 पुट करेंगे इन दिस केस, सो इट विल बी इक्वल टू 2K. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अच्छा, इफ़ लेट अस से हमारे पास ये इट इज़ नॉट गिवन कि हमारे पास ये 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू लेट अस से मोर डिफरेंट मोर पार्ट्स. सो उसके लिए हम एक जनरल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं, और वो होता है के इंडिविजुअल के हमारे पास नए जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K प्राइम, वो हमारे पास इक्वल होता है जो आपके पास टोटल K था, टोटल वैल्यू ऑफ K मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. इनिशियली जो हमारे पास थी टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट. सो इसको जब आप वर्कआउट करते हैं लेंथ ऑफ इंडिविजुअल पार्ट, जब आप इसको वर्कआउट करते हैं तो आपके पास जो K प्राइम का फार्मूला जनरल फार्मूला बन जाता है वो स्मॉल n K बन जाता है, वेयर स्मॉल n इज़ द नंबर जो जिसके अंदर आपने इसको डिवाइड किया है. इफ़ यू हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स आपके पास K प्राइम 2K के इक्वल होगा. इफ़ यू हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स इट विल बी इक्वल टू 3K एंड सो ऑन. So this is how we can solve such questions. But do keep in mind कि ये हमारे पास उस केस में है जब आपने इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. जब हम इस जो
इंडिविजुअल पार्ट्स हैं उनकी लेंथ जब डिफरेंट होंगी तो इन दैट केस उनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो भी हम डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे कि उस केस को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं। So now let's move forward towards the next question. Next question is a very interesting question. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास let us say हमारे पास एक बॉडी है, उसको हम इक्वेटर से पोल से मूव करवाते हैं इक्वेटर के ऊपर, तो उसके वेट के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि हमारे पास जो अर्थ है it is not a perfect sphere, it is elliptical in shape, right? It is somewhat like this. Now ये हमारे पास जो इसका है, ये हमारे पास इसके पोल्स हैं एंड दिस इज इट्स इक्वेटर। ओके, नाउ फ्रॉम दिस यू कैन सी कि हमारे पास अर्थ का जो पोलर रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑन द इक्वेटर्स। ओके, नाउ हमारे पास इससे हमारे पास क्या साबित होता है, हमारे पास वेट जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है mg के। नाउ मैस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, सो इट विल नॉट चेंज। G can be changed. Why G can be changed? We have studied a formula of G in the equation, I guess, in the equation of escape velocity. Yes. तो उस केस में हमारे पास स्मॉल g जो था वो हमारे पास इक्वल था कैपिटल G m ओवर r स्क्वायर, जबकि कैपिटल G जो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, m वाज द मास ऑफ अर्थ एंड r वाज द रेडियस ऑफ अर्थ। नाउ वी कैन सी कि जो g है वो हमारे पास r के ऊपर r के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। सो इट मीन्स कि जो आपके पास पोल्स पे g है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कि जो रेडियस ऑफ पोल्स है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ इक्वेटर। सो इट मीन्स कि इनका इन्वर्स रिलेशन है रेडियस का विद g। सो इट मीन्स कि जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑफ p है इट विल बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ऑन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन एट इक्वेटर। सो नाउ एज हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जब हम पोल से मूव करवा के इसको इक्वेटर के ऊपर लेके आए हैं तो इससे हमारे पास क्या हुआ, इसकी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन रिड्यूस हुई है। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन रिड्यूस हुई है तो इट मीन्स कि इसका वेट जो है वो भी हमारे पास डिक्रीज होगा। So this is how we can solve this particular question. Now we can move towards the 17th question. In this it is asked that we have two identical gases which expands isothermally and adiabatically. Now work done is more in which process? So for that we can consider the PV diagram, and for that we know हमारे पास PV diagram या PV graph के अंदर जो हमारे पास वर्क डन होता है वो हमें कैसे मिलता है, बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि हमारे पास कॉर्नर साइकिल के अंदर जो फिगर था वो हम पीवी डायग्राम था वो हमारे पास कुछ इस तरह का था, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, पहले अब हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी ये, देन इट वाज एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड देन इट वाज आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबैटिक कंप्रेशन। नाउ आप देख सकते हैं कि इस केस को अगर मैं एक सिर्फ एक्सपेंशन के केस को मैं अगर ड्रा करूं तो हमारे पास कुछ इस तरह के लेट अस से ये हमारे पास दोनों का इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम था, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। इन केस ऑफ आइसोथर्मल ये इस तरह होता है और इन द केस ऑफ एडियाबैटिक ये इस तरह होता है। सो यू कैन सी कि आइसोथर्मल के अंदर हमारे पास जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो मोर है। सो इट मीन्स कि हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन है वो भी हमारे पास ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर question. Okay, now moving forward to the next question. The next question is about the hydrogen spectrum. We know कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट इमिट होता है, ट्रांजिशन करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिट, वो रेडिएशंस इमिट करता है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। अच्छा, देयर आर 5 डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज जिनको हम लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफंट सीरीज के नाम देते हैं। वी नो कि जब हमारे पास हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो वो लेमन सीरीज होती है, जब वो सेकंड हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो वो बाल्मर,
थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर आता है तो पास चैन, फोर्थ के अंदर आता है ब्रैकेट, तो 5 के अंदर आता है तो वो प्रीफरेंट होती है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि जब भी आपके पास लेमन सीरीज होती है तो उसके अंदर जो हमारे पास रेडिएशन इमिट हो रही होती हैं वो कोरिस्पॉन्ड करती हैं यूवी रीजन को, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो यूवी रीजन को कोरिस्पॉन्ड करती है। जो बाल्मर है उसकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल को कोरिस्पॉन्ड करती है। एंड द अदर 3 जो है हमारे पास, जिसके अंदर पास चैन, ब्रैकेट एंड पी फंड आता है, वो हमारे पास कोरिस्पॉन्ड करती है IR रीजन को। सो द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बाल्मर सीरीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गैसेज हमें बताना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कैसे रिलेटेड होती है टू द डेंसिटी। ओके, फॉर दैट वी नो कि जो हमारे पास v है उसका जो हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो हमारे पास होता है गैमा इंटू पी डिवाइड बाय रो। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है या डायरेक्टली रिलेटेड होती है टू 1/√ऑफ डेंसिटी, या इन्वर्सली वी कैन से कि जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास इन्वर्सली रिलेटेड होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द RC सर्किट। द क्वेश्चन इज कि एट RLC सर्किट हमारे पास RC सर्किट लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे बिहेव करता है। सो फॉर दैट वी मस्ट नो फ्यू थिंग्स कि RLC सर्किट क्या होता है। उसके अंदर हम RLC सर्किट हमारे पास ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस गिवन है। अच्छा, अब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का हमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंस देखनी है कि इनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंस क्या है। अच्छा, वी नो कि रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास सिंपली इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो हमारे पास इंडक्टर का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है XL इज इक्वल टू ω/L और 2πfL। सिमिलरली जो XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो 1/ωc या 1/2πfC की इक्वल होता है। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? इट मीन्स कि जो इंडक्टर है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली डिपेंडेंट, इट इज़ इन्वर्सली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन्स? इट मीन्स फ्रॉम फेजर डायग्राम, अगर मैं आपको फेजर डायग्राम जो है वो ड्रा करके दिखाऊं तो उसके अंदर जब RLC सर्किट हम ड्रा करते थे तो इट वाज लाइक समवट लाइक दिस XL एंड XC। I guess this was the phasor diagram in case of RLC circuit. Now जब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर XL डोमिनेट करेगा। जब XL डोमिनेट करेगा एट हाई फ्रीक्वेंसी तो इट विल एक्ट लाइक RL सर्किट। सिमिलरली इफ वी हैव लो फ्रीक्वेंसी, एट दैट केस XC हमारे पास डोमिनेट करेगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है। सो इन दिस केस जो हमारे पास सर्किट है वो बिहेव करेगा एज अ RC सर्किट। अच्छा, रेजोनेंस के ऊपर क्या होता है? यू मस्ट नो कि रेजोनेंस के ऊपर XL और XC जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। एंड वी नो दैट दे हैव 180 डिग्री ऑफ फेज शिफ्ट फ्रॉम ईच अदर। सो इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। तो रेजोनेंस के ऊपर जो हमारे पास सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वी विल कम अप विद द न्यू वीडियो इन विच वी विल डिस्कस सम फ्यू मोर कॉन्सेप्ट्स। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।